Hello dear students, welcome back again in your Hindi revision video 5. Today we are going to do as usual in the last videos. First we will do reading comprehension, then writing and dictation, then grammar and vocabularies. I hope all of you are watching the videos carefully and learning all the things and also clearing your doubts in your live classes. So today we are going to start the reading and comprehension first, but before that you have to collect your Hindi book, Hindi notebook, pencil and eraser. So everyone pause the video and collect them. I hope you have collected them. Now let's get started. So everyone open chapter 10 अधिक बलवान कौन in your Hindi reader book. I hope all of you have opened. So as usual, first I will read this chapter, then I will give the time. You have to read that chapter again. Okay. So now let's start. एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई. हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ. सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है. इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी. हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई लाभ नहीं है. जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है. सूरज हवा की बात मान गया. उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत. हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की. आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए. हवा और जोर से चलने लगी. अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा. अब हवा थक गई थी. सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो. सूरज तपने लगा. आदमी ने कोट के बटन खोल दिए. सूरज की गर्मी और बढ़ी. आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा. सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट. हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को. So now this is your turn. You have to read this chapter yourself. Pause the video and read the chapter. I hope you have read this chapter correctly. Now let's come to now let's start our comprehension part, in which I am going to ask the questions to you and you will give the answers to me. So our first question is, किसके बीच बहस हुई? किसके बीच बहस हुई? Think and give the answer. Yes, सूरज और हवा के बीच बहस हुई. हमारा दूसरा प्रश्न है, हवा ने किसके ऊपर अपनी ताकत आजमाने को कहा? हवा ने किसके ऊपर अपनी ताकत आजमाने को कहा? Yes, हवा ने आदमी के ऊपर अपनी ताकत आजमाने को कहा. हमारा तीसरा प्रश्न है, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? Think and give the answer. Yes, अपनी ताकत दिखाने के लिए हवा जोर से बहने लगी. Now let's see what is your homework in comprehension. Yes, these are two questions you have to do in comprehension. आपको इनके उत्तर लिखने हैं. हमारा पहला प्रश्न है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? आपका दूसरा प्रश्न है, अंत में जीत किसकी हुई? अंत में जीत किसकी हुई? So note down these questions in your copy and also note down their answers. Now let's move to our third part, that is handwriting. So in the handwriting, you have to do handwriting. So before that, open your Hindi notebook, a new page, note down date, classwork and handwriting. And now listen from where to where you have to write in your notebook. So आपको लिखना है सबसे पहले डेट, क्लास वर्क अपनी कॉपी में. उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे कि आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है. आपको लिखना है, इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी से लेकर के
दिखानी शुरू की, अपनी ताकत दिखानी शुरू की। यहाँ तक की हैंड राइटिंग आप लिखेंगे। सो नाउ पॉज द वीडियो एंड डू द हैंड राइटिंग इन योर कॉपी इन वेरी वेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. I hope all of you have done your handwriting very beautifully in your copy. Now let's move to, you have done the handwriting part. Now let's come to dictation. So you have to note down date, classwork and dictation on a new page. So I am going to speak Rid Matra words to all of you. So now let's start. Our first word is Mrag. मृग, मृग, मृग. Our second word is द्रग, 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 द्रग. Our third word is, हमारा तीसरा शब्द है पृथक, 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 पृथक. हमारा चौथा शब्द है तृष्णा, 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 तृष्णा. हमारा पांचवा शब्द है कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा. हमारा छठा शब्द है कृषक, 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 कृषक. हमारा सातवां शब्द है कृपा, 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 कृपा. हमारा आठवां शब्द है वृथा, 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 वृथा. I hope all of you have noted down these words correctly in your copy. Now it's time to match all these words. Have you done it correctly or not? So I am going to show the correct words and everyone have to match them correctly. So now let's see what is written here. Number 1, match the word. But before, how will you match? Yes, you will take the word which is correct and you will cross the word which is wrong. And also you will give 0 for wrong one and give 1 number for the correct one. आपको कैसे चेक करना है? पहले जो शब्द सही है उसे टिक करेंगे और उसके सामने 1 नंबर दे देंगे. और अगर आपका शब्द गलत है मिलाने पर तो उसे आप क्रॉस करके उसके आगे 0 लिख देंगे. सो नाउ स्टार्ट द मैचिंग. हमारा पहला शब्द मृग, मैच कीजिए, नंबर दीजिए. दूसरा शब्द द्रग, मैच कीजिए, नंबर दीजिए. इसी प्रकार आपको सारे शब्द मिला करके मैच कर लेने हैं. पॉज द वीडियो एंड मैच ऑल द वर्ड्स. आई होप ऑल ऑफ यू हैव मैच दीज वर्ड्स. नाउ लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट? यस, दैट इज ग्रामर पार्ट. इन द ग्रामर व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे? यस, वी आर गोइंग टू लर्न क्रिया. आज हम क्रिया की परिभाषा सीखने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं. तो क्या होती है क्रिया? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप सभी लोग अभी क्या कर रहे हैं? यस, आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं. और मैं क्या कर रही हूँ? यस, मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ. तो मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ. और आप सब क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं. सो पढ़ाना और देखना क्या हो गया? क्रिया हो गई, क्योंकि हम इसे कर रहे हैं. क्रिया उसे कहते हैं जिससे, जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है. जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं. जैसे कि देखना, पढ़ना, सोना, जागना, लिखना, भागना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रिया. देखते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं. तो कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया. इनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हम अपनी लाइव क्लास में मिलेंगे. सो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है? इसकी परिभाषा याद करनी है और भेदों को याद करना है.
तो अब आपको वीडियो को पॉज करना है, इस परिभाषा को दोबारा पढ़ना है और इसे अपनी कॉपी में नोट करना है। उसके साथ ही आपको इन भेदों को भी अपनी कॉपी में नोट करना है। नाउ नोट देम डाउन in very beautiful handwriting and pause the video. I hope all of you have noted down them in very beautiful handwriting. Now let's come to our vocabulary part. So what are we going to learn in vocabulary today? Let's see. So हमारा पहला शब्द है अधिक। अधिक का मतलब होता है ज्यादा। हमारा दूसरा शब्द है बलवान। बलवान का मतलब क्या होता है? ताकतवर। हमारा तीसरा शब्द है लाभ। लाभ का मतलब क्या होता है? फायदा। सो ये हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और इन्हें एक बार फिर से पढ़ना है और उसके बाद अपनी कॉपी में नोट कर लेना है इन वेरी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। एवरीवन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आई होप यू हैव नोटेड डाउन देम। सो व्हाट इज योर डिक्टेशन होमवर्क टुडे? आज आपको डिक्टेशन में 10 वर्ड्स लिखने हैं ऋण की मात्रा वाले। सो आई होप आप 10 वर्ड्स अपनी कॉपी में ऋण की मात्रा वाले अवश्य लिखेंगे। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर क्लास। सो वी विल मीट इन आवर लाइव क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।